السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں 1 ستمبر سے تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کا حکومت نے کیا اعلان۔ دلت بندھو اسکیم کے لیے مزید 500 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ حضورآباد حلقے کے دلتوں پر ریاستی حکومت کی مہربانیاں جاری۔ دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں اچانک بارش، کئی سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا۔ موسم میں خوشگوار تبدیلی سے درجہ حرارت میں کمی۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں میں مصروف۔ صدر مجلس نے پتھر گٹی ڈویژن کے لیے ایمبولینس سروس کا کیا آغاز۔ محکمہ پولیس میں اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ کاچی گوڑا پولیس اسٹیشن کی جدید عمارت کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر داخلہ نے کیا خطاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے حضورآباد میں دلت بندھو اسکیم کو کامیابی کے ساتھ روب عمل لانے کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے مزید 500 کروڑ روپے کلکٹر کریم نگر کے نام جاری کیے ہیں۔ اسی طرح اب تک اس اسکیم کو روب عمل لانے اور دلت خاندانوں کو فی کس 10,000 روپے فراہم کرنے کے سلسلے میں 1,000 کروڑ روپے حکومت کی جانب سے جاری کر دیے گئے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 16 اگست کو حضورآباد میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حضورآباد کے 20,000 دلت خاندانوں کو دلت بندھو اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے 1 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارہ جات کی کشادگی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیمات اور محکمہ صحت کی جانب سے حکومت کو موجودہ حالات پر رپورٹ پیش کرنے اور 1 ستمبر سے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی سفارش کے بعد وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے مذکورہ فیصلہ لیا ہے۔ واضح رہے کہ خانگی اسکول اور کالج انتظامیہ کی جانب سے حکومت پر مسلسل دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ جلد از جلد تعلیمی اداروں کی کشادگی عمل میں لائی جائے۔ نیز محکمہ صحت نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ تلنگانہ میں کووڈ کی تیسری لہر کے کوئی اثرات نہیں پائے جاتے۔ حکومت نے تعلیمی شعبے کے سلسلے میں یہ ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں 24 اگست بروز منگل کو تلنگانہ بھون میں پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں ذرائع کے مطابق ریاست بھر میں پارٹی کو مزید مستحکم کرنے، پارٹی کی رکنیت سازی مہم اور دلت بندھو اسکیم کی کامیابی کے ساتھ روب عمل لانے اور اب تک حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی فلاحی اسکیمات سے عوام کو کس حد تک فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ صدر TRS اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پارٹی قائدین کو کئی ایک ہدایتیں بھی جاری کریں گے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے GHMC کی جانب سے گریٹر حیدرآباد میں ہر فرد کو ویکسین فراہم کرنے کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا خیرتآباد کے ایک سینٹر کا معائنہ کرنے کے بعد جائزہ لیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گریٹر حیدرآباد میں 4,846 علاقے جات اور کالونیز کی GHMC عملے نے نشاندہی کرتے ہوئے ان علاقے جات میں ویکسین فراہم کرنے کے سلسلے میں مراکز قائم کیے ہیں اور گھر گھر پہنچ کر ویکسین فراہم کرنے کے سلسلے میں 90 موبائل ویکسین گاڑیاں بھی تیار کی گئی ہیں، جس کے ذریعے روزانہ 20,000 افراد کو ویکسین فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک GHMC حدود میں 70% افراد ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اراکین اسمبلی اور کونسل سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے جات کی عوام سے اپیل کریں کہ وہ عوام میں کورونا ویکسین لینے سے متعلق شعور بیدار کیا جائے۔ اس موقع پر سیکرٹری محکمہ صحت رضوی، GHMC کمشنر لوکیش کمار کے علاوہ ڈسٹرکٹ کلکٹر حیدرآباد اور دیگر بھی موجود تھے۔
مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت کشن ریڈی نے گاندھی ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ اب تک ملک بھر میں 58 کروڑ افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ مابقی کو ماہ دسمبر تک فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 1222 آکسیجن پلانٹ قائم کیے گئے ہیں، جس میں سے 8 آکسیجن پلانٹ گاندھی ہاسپٹل میں قائم کرنے کی وجہ سے کورونا کی دوسری وبا کے موقع پر آکسیجن کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ کوئی بھگوان نہیں ہے جو تیسری لہر یا اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ماسک کے استعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے MHRD میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی TRS حکومت کی کارکردگی 2014-15 سے لے کر 2020-21 تک کی پاور پلانٹ پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا وبا کے باوجود ریاست کی شرح گروتھ مرکز سے کہیں زیادہ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تمام فلاحی اسکیمات مشن بھگیرتا، ریتو بندھو اسکیم، ریتو بیمہ، 24 گھنٹے برقی سربراہی کو جاری رکھتے ہوئے ملک بھر میں ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا زرعی شعبہ اور شرح پیداوار ملک کی دیگر ریاستوں سے کئی گنا زائد ہے اور IT شعبے میں گزشتہ 7 سالوں کے دوران 120% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ، سولار پلانٹ کی تیاری اور گیس کی تیاری میں بھی ریاست تلنگانہ ملک کی دیگر ریاستوں کی بنسبت بہتر ہے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں، کانگریس اور BJP کی جانب سے ریاست کا دیوالیہ نکل جانے اور حکومت کا خزانہ خالی ہو جانے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ اپوزیشن حقائق سے دور رہتے ہوئے ہوا میں باتیں کر رہی ہے۔ So we thought it is appropriate. And ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూస్తూ ఉంటే కేంద్ర మంత్రి గారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య ఆశీర్వాద యాత్రతో మన రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తూ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరగడం లేదనో, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయిందనో, రకరకాలుగా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కేంద్ర మంత్రి గారు రాష్ట్రంలో పర్యటించేటప్పుడు వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కావచ్చు, రాష్ట్రంలో PCC అధ్యక్షులు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కానీ, అంటే మరి వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏదైతే ఉందో అది అవగాహన రహిత్యంతోనైనా మాట్లాడాలి, లేదు ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయ లబ్ధి కోసం అవాస్తవాలను ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నమైనా అయి ఉండాలి. బట్ ఏది ఏమైనా మరి మేము రాష్ట్ర ప్రజల ముందు వాస్తవాలు పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత మా మీద ఉంది. ఇలా ఎంత అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తుంది అనేటువంటివి ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి వివిధ గణాంకాల ఆధారంగా మరి అభివృద్ధికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి. దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ పారామీటర్స్. సో ఆ పారామీటర్స్లో ముఖ్యంగా కొన్ని GSDP కానీ, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కానీ, పవర్ కన్జంప్షన్ కానీ, ప్రైమరీ సెక్టార్లో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో గ్రోత్ రేట్ కానీ, మెజార్టీ ప్రజలు ఏ రంగాల మీద అయితే ఆధారపడుతున్నారో ఆ రంగాల్లో సాధించేటువంటి వృద్ధిని ఆధారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆయా రాష్ట్రాలు, ఆయా దేశాల యొక్క అభివృద్ధిని మరి కొన్ని పారామీటర్స్ ఆధారంగా లెక్క చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ ప్రత్యేకంగా ఆయా రంగాల్లో మనం ఎక్కడున్నాం, ఎలా ఉన్నాం అనేటువంటిది టోటల్గా ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ మీకు తయారు చేసి మీ ముందు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ హార్డ్ కాపీ కూడా మీ అందరికి ఇచ్చాం. ఈ ఆఫ్టర్ దిస్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇంకా కొన్ని విషయాలు కూడా మేము ప్రెస్ మీట్ రూపంలో మీ ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది. BJP रुकन असम्बली रघुनंदन ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से मुल्क की मईशियत बांग्लादेश से ख़राब होने और तेलंगाना की मईशियत मुल्क की दीगर रियासतों से बेहतर होने से मुताल्लिक़ जो आदाद व शुमार पेश किए हैं इसे गुमराहकुन करार देते हुए बताया कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से वो रियासत की मईशियत और शरह ग्रोथ पर किसी भी वक्त मुबाहिस के लिए तैयार हैं, क्योंकि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हक़ाइक़ बयान करने की बजाय अपोजिशन पर बेजा तनक़ीदें की है।
తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతి ఏటా ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్ని దాటుతూ జీడిపిలో 6వ స్థానానికి ఎగబాకింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన 2014 నుంచి పోల్చుకుంటే 2021కి వచ్చేసరికి మేము 6వ స్థానంలోకి ఎదిగినాం. ఇది భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా ఇంత గొప్ప పరిణతిని, ఇంత గొప్ప ప్రగతిని సాధించలేదు. ఇది జగద్వేదితము. మా గణాంకాలన్నీ అంత గొప్పగా స్టాటిస్టిక్స్ని చూపిస్తూ ఉన్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏమీ చేయట్లేదు, అంతా మేమే చేస్తూ ఉన్నాం. మేము చేస్తేనే, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 4-5 రాష్ట్రాలు చేస్తేనే దేశం నడుస్తుందని కేసీఆర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్పినారు హరీష్ గారు. వారంత బాగా మేము చదువుకోలేదు, వారంత గొప్పగా మేము అబద్ధాలను చెప్పలేం, వారంత బాగా మా దగ్గర అధికారులు చెప్పినటువంటి తప్పుడు లెక్కలు లేవు. మీరు చెప్పిన గణాంకాలన్నీ నిజమే అయితే తెలంగాణ 2014 నుంచి 2021 దాకా దినదిన ప్రవర్తమానమై ఎదుగుతూ వస్తే ఎందుకు 1వ తారీఖు ఇవ్వాల్సినటువంటి జీతాలని 7వ తారీఖుకి, 9వ తారీఖుకి, 11వ తారీఖుకి ఇన్స్టాల్మెంట్ల రూపం లోపల జీతం ఇస్తున్నామో? हैदराबाद में महकमे आबरसानी और सीवरेज बोर्ड की तरफ से सफाई मुलाजमीन के लिए शऊर बेदारी मुहिम जारी है। सईदाबाद डिवीज़न में आज शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें GM नागेंद्र कुमार, DGM अजीज़ुद्दीन, शीला रानी और मेंजर हशमत अली ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए डिवीज़न 2A के जनरल मैनेजर नागेंद्र कुमार ने कहा कि सीवरेज वर्कर्स की सलामती के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसका मकसद है कि मुलाजमीन को ये बताया जाए कि उन्हें मेन होल्स में नहीं उतरना चाहिए। अगर उतरना नागुज़ीर हो गया हो तो तमाम एहतियाती तदाबीर और किट्स का इस्तेमाल करते हुए DGM और मेंजर की मौजूदगी में मेन होल्स में उतरा जा सकता है। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि ड्रेनेज और मोरियों में प्लास्टिक बैग्स और दीगर सामान फेंकने से गुरेज करें। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली TRS के वेंकटेश, DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि काचीगुड़ा सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में इस्लाहात के तौर पर पुलिस स्टेशन की जदीद इमारतें तामीर की जा रही हैं। రైలుతో వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు ఎప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కావాలి, పోలీస్ సపరేట్ కావాలంటే చాలా పాత పోలీస్ స్టేషన్. మహానీయులు సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు. ఇంత ముందు పోలీస్ అంతా పెట్రోలింగ్ లేదు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు చాలా పబ్లిక్ లో డౌట్ ఉంది, ఆ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత లైన్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది. అప్పుడు మా DG గారు, కమిషనర్ గారు ఉన్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు. మహానీయులు సీఎం గారు బడ్జెట్ भी స్పెషల్ చేశారు. ఎట్ టైంలో అంటే పెట్రోలింగ్ కోసం सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में एक और मुफ्त एम्बुलेंस आवाम की खिदमात के लिए दस्तियाब रखी गई है। दारुसलाम में पीर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीज़न के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी और पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। मज़कूरा एम्बुलेंस चार मीनार के पास पार्क रहेगी और ज़रूरतमंद फ़ोन करते हुए इसकी सर्विस हासिल कर सकते हैं। दारुसलाम में सदर कुलीन मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लिमान हैदराबाद के हाथों एक एम्बुलेंस का इनाग्रेशन हुआ है, इब्तिदा अमल में आया है। ये एम्बुलेंस जो पिछले कोविड में कई पेशेंट परेशान थे, जिसके घर में जो कोविड के पेशेंट थे और जो नागानी सूरत हाल थी, उस वक्त बहुत सारे लोग परेशान थे कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। तो मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक फ्री सर्विस दी जाएगी यहाँ पर। ये एम्बुलेंस चार मीनार के दामन में रहेगी
और इंशाअल्लाह अज़ीम ये जमात की तरफ से तमाम जो परेशान हाल है, जो पेशेंट है या डेड बॉडी दवाखाने से घर मुंतकिल करना है, इनको इंशाल्लाह ये फ्री सहूलत दी जाएगी। ये मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ख़ास तौर से पत्थरगट्टी के तमाम मुहिबान मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मुतमदीन ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की है। मेरे साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों इब्तिदा अमल में आया है। मैं एक मरतबा आपके चैनल के ज़रिए तमाम ओल्ड सिटी के लोगों को, ख़ास तौर से पत्थरगट्टी वालों को मैं सब से कर रहा हूँ कि चार मीनार पर रहेंगे। इसका नंबर भी, टेलीफोन नंबर भी देंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीम, और ये नंबर से आप फ़ोन करिए, ड्राइवर आप तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। इसका टेलीफोन नंबर है 9642986838। इसका टेलीफोन नंबर है। इंशाअल्लाह अज़ीम आप टेलीफोन से रब्ता पैदा करिए। दोनों शहरों के मुख्तलिफ हलकों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्के याकुतपुरे की 129 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में मज़कूरा चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हाथों अमल में आई। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि जैसे जैसे चेक्स की मंजूरी होती जाएगी मुस्तहकीन को चेक हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस की कोशिशें मुसलसिल जारी हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, मुजफ्फर हुसैन, अलमदार वाला जाही और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली भी मौजूद थे। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कि उन्हें पाबंद किया कि जैसे जैसे चेकों की तकमील होती है बिला ताख़ीर उसको दरख्वास्त गुजारों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। चुनांचे आज संतोष नगर गार्डन प्लाजा में तमाम दरख्वास्त गुजारों को तलब करके ये चेक उनके हवाले किए गए। जुमला 1,29,14,946 रुपये के लागत के चेका हैं जो तकसीम किए गए और 129 लोगों में चेकों की तकसीम हुई, जिसमें शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के चेका शामिल हैं। हमारे याकुतपुरा हल्के के कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब, डॉक्टर समीना बेगम साहब, अलमदार वाला जाही साहब, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात साहब ये इस मौके पर मौजूद थे। इंशाअल्लाह जैसे जैसे चेकों की तकमील होगी वैसे बिला ताख़ीर लोगों को बुला के चेकों की तकसीम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई के साथ साथ हुकूमत के जो रिफाई काम है जिसको मजलिस ने मंजूर करवाया था उसके भी कामों की से आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है और सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से जारिया मानसून सीज़न के पेश नज़र डेंगू और मलेरिया के अमराज से निमटने और इंसदाद के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। हल्के चारमीनार में रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां की निगरानी में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मच्छरों पर काबू पाने के लिए मच्छर जीवन चक्कर से मौसूम ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर में मच्छरों की अफजाइश से बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मुमताज़ अहमद खां ने कहा कि घरों में पानी को जमा होने से रोके ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में एक पम्फलेट भी जारी किया गया जिसमें मच्छरों की अफजाइश को रोकने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मशवरे दिए गए हैं, जिनमें घर में पानी को जमा होने से भी रोकना है।
हज़रत गौसे आज़म वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हाथी पर निकाले गए निशान मुबारक जुलूस पर काबिल एतराज़ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक पर किए जाने के बाद एक शख्स के खिलाफ रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मज़कूरा पोस्ट की खबर वायरल होने के बाद सोसाइटी के अरकान और मुकामी अवाम ने रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना भी मुनज़्ज़म किया। इस वाक़े के सिलसिले में DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मीडिया को तफसीलात बताईं। कल 11वीं शरीफ एलिफेंट प्रोसेशन मीर चौक पुलिस स्टेशन में कंडक्ट करे। वो 11वीं शरीफ एलिफेंट प्रोसेशन को देख के थोड़ी सफदर सरफराज बोल के एक आदमी ऑब्जेक्शनबल पोस्ट सोशल मीडिया में फेसबुक में पोस्ट करे। वो पोस्ट देख के थोड़ा कम्युनिटी लोगों हट हो गया। इमीडिएट कंप्लेंट दिए रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में। वो कंप्लेंट हम ले लिए, उनको एक्नॉलेजमेंट भी दिए। उनको हम बोले वो कंप्लेंट में हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं बोल के वो लोगों भी सेटिस्फाई हो गया। पुलिस इतना जल्दी एक्शन ले रहे हैं बोल के वो लोगों भी सेटिस्फाई हो गया। कल मीर चौक PH लिमिट्स में ईरानी गली में जो 11वीं का जुलूस निकला था, इसके ऊपर एक आदमी ने कोई सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट लगाए। इसके खिलाफ कुछ लोग अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए आए। थोड़ी गैदरिंग भी उनको समझाया, उस पर केस भी करवाया अभी। और अभी उन लीडर से भी बात की। वो सब ने बोला कि ये एक इंडिविजुअल का काम है, इस पर कोई किसी सेक्ट का किसी भी ग्रुप का इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोले। वो केवल एक इंडिविजुअल का वो आदमी है, उसका ही एक पोस्ट है अभी। थैंक यू। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से CRR पेटला बुरुज में खातून ओहदेदारों मुलाजमीन की सहूलत के लिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि यह बैरक डबल बेड्स, वॉशरूम और रेस्ट रूम की सहूलत से आरास्ता है। उन्होंने कहा कि CRR में हमेशा ट्रेनिंग जारी रहती है, वहाँ ओपन क्लास रूम और लिफ्ट का भी इफ्तिताह अमल में आया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से पुलिस शोबे में 30% मुलाजमत ख़वातीन के लिए मख्तस करने का फ़ैसला किया गया है, जिसकी वजह से ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन की खिदमत में इजाफ़ा हुआ है। आज खातून पुलिस मुलाजमीन मर्द पुलिस मुलाजमीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर एडिशनल क्राइम शिखा गोयल और एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान की कोशिशों की भी सताइश की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हाई कोर्ट ने ST खातून के साथ दस्तदराजी करने और दीगर जराइम में मुलविस नीलनमेट पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर को 5 साल कैद मामशक्क़त की सज़ा सुनाई है। नीलनमेट पुलिस के मुताबिक 25 साला बी कल्याण को 26 मई 2020 को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। मुख्तलिफ जराइम के तहत केस चलाया गया था, जिसके दौरान राउडी शीटर को सज़ा सुनाई गई। काला पत्थर पुलिस हदूद के इलाके कुम्हारवाड़ी में एक शख्स पर वजनी पत्थर डालते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सादिक नामी शख्स पर उसी के दोस्त ने हमला करते हुए उसका कत्ल किया है। इस सिलसिले में नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए केस भी दर्ज किया गया।
खरकने पे को दिया तो दोनों शहरों में अचानक हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा देखा गया। शाम 4 बजे से ही बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जिसके बाद अचानक मूसलाधार बारिश हुई और कई इलाकों में बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम भी देखा गया। माह जनवरी साल 2019 में हफीजपेट रेलवे स्टेशन के करीब हुए खातून की इस्मत रेजी केस में मुलविस 6 नौजवानों को कसूरवार पाते हुए एलबी नगर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना फीकस अदा करने की सज़ा सुनाई है। मियाँपुर पुलिस की जानिब से इस केस के सिलसिले में कोर्ट में पैरवी की गई थी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने मियाँपुर पुलिस की इस सिलसिले में सताइश की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का हुकूमत ने किया ऐलान। दलित बंधु स्कीम के लिए मजीद 500 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुजूराबाद हल्के के दलितों पर रियासती हुकूमत की मेहरबानियां जारी। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश, कई सड़कों पर पानी जमा देखा गया। मौसम में खुशगवार तब्दीली से दर्जे हरारत में कमी। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में मसरूफ। सदर मजलिस ने पत्थरगट्टी डिवीजन के लिए एम्बुलेंस सर्विस का किया आगाज। महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर दाखिला ने किया खिताब। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।